Hello friends, this is Monica Agarwal or I welcome you to Tarot Kismet Connection in our today's program. This is for the June 2017 and I know you people will be waiting for me, so I am exactly on time, just 2 minutes late. So I think that is quite okay for all of the people, and we will be starting our program Tarot Kismet Connection. So let the more people join and then we will start the Tarot Kismet Connection, because what happen is normally we start it early and some or the other people miss out their sun sign. So okay, fine. So I have 3-4 people joined with me: Mukesh Singh, Ruchika Thakur, Isha Aditi Dhar. Hello, how are you? Okay, so I am getting lot of likes, love, wows, wow. So a very warm welcome from all of you. Thank you so much. So we'll be starting the Tarot Kismet Connection for June 2017 and देखते हैं June 2017 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। भाई आप लोगों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले हम एरीज का देखते हैं। एरीज के लिए देखते हैं जून 2017 क्या लेके आया है। सो इफ वी टॉक अबाउट एरीज, okay, fine. So Aries, there is very good news for all of you in June 2017. आपको कोई बिजनेस डील में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो एरीज हैं। आपको कहीं से मनी गेन हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलें। एंड एज फार एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, यू विल बी enjoying your love life and your married life to the fullest. If you are married, you will be spending lot of time with your spouse, and if you are into a love relationship, you will be taking it to the next level. And if you are single, then there is a very high possibility that you might meet someone very special this month. So for Aries, as far as the money is concerned and love is concerned, thumbs up. But yes, you have to be careful about your health, because your health card is showing a little warning. It's nothing to be worried about. You just have to be very careful about what you eat and how you devote your time to your physical body also, because maybe अगर आप थोड़ा लापरवाही करेंगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े हो सकते हैं छोटे मोटे। तो अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो आपका ठीक रहेगा। And when it is concerned to our family life and overall it would be a very good month. So you will be enjoying a lot in the events, you will be enjoying on your business part or a job part, and you will be enjoying your love life. So that is all about the Aries. Now we'll move to the next sun sign. Thank you, Isha ji, and welcome to my program. Now we'll move to Taurus. So let's see June 2017 Taurians के लिए क्या लेके आ रहा है। So Taurians, let's see June 2017 क्या लेके आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, जून में कुछ प्लैनेट्स अपना जैसे कि हर बार होता है, थोड़ा सा कुछ घर बदलते हैं, कुछ रेट्रोगेट में जाते हैं। सैटर्न की अगर हम बात करें, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोगेट में था। 19 जून को वो कम्प्लीटली स्कॉर्पियो में वापस आ जाएगा एंड 4 मंथ्स के लिए अगेन रहेगा। तो ये काफ़ी सारे सन साइंस के ऊपर इफ़ेक्ट्स देने वाला है। बट हम लोग टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं, तो टैरो इज़ वंडरफुल टूल एंड इट गिव यू अ मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रो, न्यूमरो एंड अदर थिंग्स। वो कंबाइंड प्रिडिक्शन होती है, सो यू कैन गो बाय दिस थिंग। तो टॉरियंस के लिए देखते हैं जून 2017 क्या लेके आ रहा है, क्या कहते हैं आपके सितारे जून के लिए टॉरियंस। वाओ, सो टॉरियंस बहुत काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे। मे बी वॉट आई कैन सी इज़ अ कोर्ट केस। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं, तो जून इज़ अ वेरी गुड मंथ। आपका वो रुका हुआ काम आपका बनेगा। As far as your love life is concerned, you have to be careful about your love life, because I think that there are some people around you who are not so happy with your love life and they keep
फिलिंग योर ईयर्स बाय डिफरेंट मीन्स। तो हो सकता है उनकी बातों को अगर आप बहुत ज़्यादा तूल देंगे तो शायद वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दें। तो मेरा सजेशन टॉरियंस को स्पेसिफिकली ये रहेगा कि अपने दिल की सुने और अपने पार्टनर को पहले प्रेफरेंस पे रखें, बाकी लोगों के मुकाबले किसी और के कहने में आकर उनसे कोई झगड़ा ना करें, पहली चीज़। और दूसरा, अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी एज यूजुअल, जून में कोई परेशानी नहीं है। बट अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है कोई आपके घर अनवांटेड गेस्ट आ जाएं जिसकी वजह से आपकी फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं या आपके आपस में मतभेद हो रहे हैं। एंड आप किसी इल्यूज़न में भी, हो सकता है किसी इल्यूज़न में भी ट्रैप्ड हो रहे हैं और अपने उस इल्यूज़न को ही सच मान के चल रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे सकती हैं। बट इसका एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है, गणपति जी की पूजा करिए और मेडिटेशन करिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे। तो चलिए, अगर हम बात करें जेमिनाई की, सो लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई। जेमिनाई के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे जून के महीने के लिए? तो जेमिनाई के लिए अगर हम देखते हैं, ओके, सो जेमिनाई आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंडिकेट कर रहा है। आप किसी मैरिज में जा सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं, बिजनेस ट्रैवलिंग भी हो सकता है। हाय भावना, हाउ आर यू? हाय सुधा मैम, हाउ आर यू? एंड मेरे को जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं उनको जस्ट हैंड्स भी वेव कर रही हूँ ताकि हम लोग रीडिंग के साथ साथ बातचीत भी कर सकें। तो जेमिनाई की हम बात कर रहे थे। तो जेमिनाई आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंडिकेट कर रहा है। आप किसी बिजनेस टूर पे या फैमिली ट्रिप पे जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही है कि प्रोफेशनल फ्रंट पे स्पेसिफिकली आप अपने सारे एनिमीज़ या अपने सारे राइवल से ओवरशाइन करेंगे। मतलब लाइक पीपल विल बी wanted to let you down, but you will overshine them because your work performance is very good. Your seniors will be very happy with you. थोड़ा सा अपने आप को एंगर को कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आपने गुस्से में आके कोई बात कर दी तो बात को तो आप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर वो रिश्तों को थोड़ा सा बिगाड़ देती है। तो थोड़ा अपने एंगर को कंट्रोल करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद कोई जवाब दीजिएगा। एज फार एज योर मनी इज़ कंसर्न एंड हेल्थ इज़ कंसर्न, perfect, no issues in money and health. So we'll move on to the other sun sign, and that is the Cancerians. So Cancerians का देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और हमारे कार्ड्स जून में कैंसेरियंस के लिए कैसा जाने वाला है। तो कैंसेरियंस की अगर हम बात करें, okay, wow. So Cancerians, let's talk about something good first. When I talk about your love life, it would be very good. You would be spending a lot of time with your partner. You will be taking your love life to a next level. And if you're married and if you are planning for kids or something like that, it is a very good period. This is a very fruitful month for you. So जो लोग मैरिड हैं और जो लोग फैमिली प्लानिंग्स के लिए या फैमिली वे पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है अगर हम कैंसेरियंस की बात करें। बट देन I can see some force around you who is like, I would straight away say there is some jealousy energies which I am finding around you, Cancerians. So you have to be beware of all your happiness and all your achievements, to whom you are telling and to whom you are not telling. So beware of such kind of people. Do not be too vocal about your successes to these kind of people. It's it's always better कि अगर कुछ लोग आपके आसपास होते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ ना करें अपने सक्सेस का। लेट द सक्सेस मेक्स द नॉइज़ देम सेल्फ, एंड इट्स अ वेरी गुड, एक बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे याद हो रहा है, लाइक लेट योर साइलेंस कन्फ्यूज देम एंड लेट योर एक्शन अमेज देम. सो फॉलो दिस थिंग, देन देर इज़ नो इश्यूज़. एंड मैं हेल्थ की अगर बात करती हूँ, हेल्थ आपका
अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खाने पीने का, बस कुछ बाहर का फास्ट फूड या उल्टा सीधा मत खाइएगा, वो थोड़ा सा आपको स्टमक अपसेट कर सकता है। या फिर अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक में डाल सकते हैं। तो जरा सोच समझ के दिमाग से भी काम ले लीजिएगा, इंट्यूशन के साथ दिमाग भी हमें यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर हम बात करें आपके जॉब फ्रंट की या बिजनेस फ्रंट की, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप्स जुड़ेंगी, नए लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ एक बेटर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी next sun sign. We have already done the Aries, Taurus, Gemini and Cancerian. Now we'll be moving to Leos. Leos के लिए देखते हैं जून में आपके सितारे क्या कह रहे हैं। बाकी लोग भी थोड़ा सा लाइक लव थोड़ा सा दे दो मुझे यहाँ पे, ताकि मोटिवेट हो जाऊँ और अच्छे से रीडिंग करूँ मैं। तो चलिए लियोस के लिए देखते हैं हम कि जून में आप के लिए आने वाला है। Leos, so let's talk about your career and business. It would be very good, and especially after 19th you will be getting work to getting back to what you was getting earlier, क्योंकि सैटर्न आपका वापस स्कॉर्पियो में जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम आपके सनसाइन की बात करें, आपके घर की बात करें, तो आपको वापस बेनिफिट मिलेगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मनी गेन बहुत ज़्यादा होगा। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले ना मिले, बट मनी पार्ट पे आप लोग बहुत खुश रहेंगे। हम अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर को ध्यान देना मत भूलिए, कहीं ऐसा ना हो कि वर्क के चलते आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर दें। तो लियोज प्लीज़ give some time to your loved one also, because along with the work the loved ones are very important, because they are the back force and वो ही होते हैं जो आपको काम करने के लिए बूस्ट अप भी देते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं। so do not forget them and do not take them for granted. and as far as the health is concerned, health is perfectly fine, कोई दिक्कत नहीं है, बट शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस इश्यूज हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा टाइम आप नेचर वॉक करिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक्स लीजिए या इवनिंग वॉक्स लीजिए, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिए, मेडिटेशन करिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप लोग रेकी सीख सकते हैं। अगर आप रेकी ऑलरेडी करे हुए हैं तो आप रेकी को रेगुलर प्रैक्टिस करिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो वर्गोस के लिए देखते हैं, वर्गोस के लिए जून का महीना क्या लेकर आया है। अगर हम वर्गोस की बात करें, वर्गोस ओके, so Virgos, there would be a lot of workload and lot of stress this month, so get mentally prepared, कमर कस लीजिए, बहुत काम आपको करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रूटफुल काम करेंगे, फालतू की चीज़ें थोड़ी सी लगी रहेंगी। अचानक से गेस्ट आ गए, भागा दौड़ी हो गई, कहीं बच्चे के लिए भागना पड़ रहा है, कहीं हस्बैंड के लिए भागना पड़ रहा है, कहीं कुछ भागना पड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम आपके साथ लगा रहेगा और उससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने के लिए, गो आउट फॉर सम शॉपिंग, गो एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड स्पेंड सम एम्पल ऑफ टाइम विद देम। थोड़ा सा वर्क के साथ निकालिए और वर्क इतना ही लीजिए अपने हाथ में जितना कि आपसे निभ सके, उस ज़्यादा इतना वर्क अपने हाथ में मत लीजिए जो आपसे निभ ना सके। तो वर्गोस के लिए खासकर ये सलाह है, शिव जी की पूजा करने से आप लोगों को लाभ होगा। तो चलिए लिब्रंस के लिए देखते हैं ये मंथ कैसा रहने वाला है।